Okay, student, today we'll learn class 7th, chapter number 7, human, environmental, settlement, transport, and communication. Human, the people, those who are living in one place, their settlement. Some people are moving from other place, and their transport, how they are transporting their materials from one place to another. And the third is communication, how they are communicating with other people. Okay, so this will be in the we will learn in this chapter that how humans are humans environmental settlement in one place and transport they are transporting their materials there and communications with other peoples, that we will learn in this chapter. So in first chapter we had learned about that how humans were peoples were depending in other people and what things they are depending on their main things is that food, second is that clothing, third is that shelter they want to live, right, for the weather, changing the weather at that time. So but what happened there after the time to time, what happened there, the peoples were changing their lifestyles, how the times are gone, how they are started their needs, for their needs they are started for their transporting, their needs for the communication, right, there's like that way they are changes their lifestyles. Okay, so first of all we'll learn about the settlements, are place where people build that uh, as homes, build their homes. Early human beings lived on trees in a caves. When they started to grow crops, it became necessary to have permanent homes. Like that way, they are started to settle their life. Okay, so uh, the settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. So most of the peoples have started to live near the river, right? Most of the peoples were started to live near the river for water, for the water. So they needs their water for their daily lifestyles. Okay, so they started to live near the rivers and like that way. um, with the development of traders, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Rivers Valley, do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile, and Honghe? This type of the rivers, the peoples that started near these rivers. Settlement can be permanent or temporary. Now, settlement, there are two type of settlements are there. Like one is the permanent, the people those who are living in one place, and the second is the temporary, the people those who are living in the other places for their needs, है ना. तो इसमें क्या होता है, जो परमानेंट लोग जो होते हैं वो लोग एक ही जगह पे रहता है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर कर बार बार उन लोग सीख जाता है उसके ऊपर, राइट, तो वो लोग पे परमानेंटली एक जगह पे रह जाता है. सेकंड जो है वो टेम्पररी, जो टेम्पररी लोग जो होते हैं जो एक जगह से दूसरा जगह तक वो वहाँ पे चला जाता है अपना काम के लिए. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स. टेम्पररी सेटलमेंट जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है दैट इज कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट. The people living in deep forest, hot and cold deserts and mountains often dwells in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation, and transhumance. Right. दिस आर द टेम्पररी पीपल्स. मतलब ये लोग जब जाते हैं एक जगह से दूसरा जगह पर तो खाने के लिए उनको क्या क्या मिल जाता है, हंटिंग करके जो जानवर को मार लेते हैं उनको खा लेते हैं, राइट. गैदरिंग जो होता है उनको सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ जानवर को बड़े को पकड़ लेता है और उसको पीस मतलब उनको खा लेता है. शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, एक जगह पे कल्टीवेशन किया फिर वहाँ से उन लोग दूसरा ज़मीन को, फॉरेस्ट को उन लोग ने साफ़ किया, वहाँ जाकर दे आर स्टार्टेड टू कल्टीवेशन. लाइक दैट वे दे आर living in different ways. However, more and more settlements today are permanent settlements. आज अगर हम लोग देखा जाए तो लोग जो है एक ही जगह पे रह लेता है, क्योंकि परमानेंट जगह वो लोग वहाँ पे रहता है जहाँ पे उनको इनकम के लिए कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव. अब
परमानेंट होगा तो उसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो लोग एक ही जगह पर उन लोग सब अपना घर बार सब कुछ बनाकर उन लोग रह लेता है, राइट। So here is one story about one of the family stories. It was mentioned here that we will read here. So what is the story is that it was Mary's birthday party. यहाँ पे एक लड़की मेरी है, उसका बर्थडे है. She and her friends were waiting for Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. और ये लोग वेटिंग कर रहा है उनका फ्रेंड के लिए, गुरप्रीत के लिए, ताकि वो लोग केक काट सके. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड कफिंग एंड वीजिंग, और विद इन ए फ्यू मिनट्स गुरप्रीत केम टू देयर हाउस एंड स्टार्टिंग कफिंग एंड वीजिंग. और वीजिंग मतलब छींकना और नाक में से दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर केम कमिंग. सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम्स वॉज टेरेबल, और बोलते करते करते उसने बोला ओह दिस इज सो मेनी टेरेबल्स दैट मीन्स ट्रैफिक जाम्स, वी हैड लॉट ऑफ टेक टाइम टू कम हियर. मेरीज मदर मिस्टर थॉमस पैटेड गुरप्रीट्स बैक एंड सेड, राइट. और मेरीज का मदर मिस्टर थॉमस पैटेड, मेरीज मदर मिस्टर थॉमस पैटेड गुरप्रीत का पीछे थप्पड़ के बोला उफ करके. द पोल्यूशन इन आवर सिटी. ओके, द पोल्यूशन, द पोल्यूशन मतलब क्या पोल्यूशन है यार, यहाँ तक पहुँचने में हमको कितना पोल्यूशन आना पड़ता है, कैसा रोड है यार, मीन्स अपने आप को बोलने लगा. प्रसाद हैड रिसेंटली केम फ्रॉम हिज विलेज, और प्रसाद जो था वो विलेज से आया हुआ एक लड़का था. ही आस्क्ड व्हाई डू यू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटी. उसने से बोला क्यों इतना, व्हाई दिस मच पोल्यूशन इज देयर एंड व्हाई दिस मच ट्रैफिक जैम इज देयर, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग, राइट, पोल्यूशन, बिकॉज उसने बोला कि भाई व्हीकल्स जो है बढ़ रहा है डे बाय डे, ज़रूरतें बढ़ रहे हैं डे बाय डे, एंड पॉपुलेशन ऑल्सो इज मोर इन द सिटीज़. मेरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाई, उसका फादर थॉमस रिप्लाई ने उसको बताया. मेरी आस्क्ड देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, वाई दिस पीपल आर कमिंग टू द सिटीज़, मेरी ने पूछा. तो ऑब्वियसली क्यों एक सिटी में इतना लोग भीड़ जमा के आ जाता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा इनकम के लिए, राइट, नहीं तो और कोई सोर्सेस के लिए. इफ़ सो मेनी पीपल्स कीप कमिंग टू सिटी वेयर विल ऑल द पीपल्स लिव. अगर ऐसे ही लोग आते रहेंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे, राइट, हाउ दे विल लिव. Mr. Thomas said that is why you see so many slums and squatter settlements. Slums मतलब झूपड़पट्टी, और squatters मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए घर, मतलब गली गली छोटा छोटा रास्ता, राइट, गटर सब साथ में, और लाइट इलेक्ट्रिक और ये सब कुछ अलग अलग, और कंजेशन, रहने में बहुत ही कंजेशन, एंड अनहाइजेनिक कंडीशन, राइट, बिल्कुल ही गंदगी वाला सिटी. शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाईज और कॉमन पीपल प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़. और पानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, राइट, कभी पावर चली जाती है. प्रसाद सेड आवर विलेज. तो ये सब सुनने के बाद प्रसाद ने क्या बोला, इन आवर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा. हमारे विलेज में शायद हमारा बिग सिनेमा हॉल नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, गुड हॉस्पिटल्स नहीं है, बट वहाँ पे हमको फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए. हमको ऐसा कंजेशन वाला जगह कुछ नहीं है, हमको बहुत सारा स्पेस है वहाँ पे सांस लेने के लिए. व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक, लेकिन जब मेरा ग्रैंडफादर बीमार हो गया था तो हमको उनको लेकर सिटी में जाना पड़ा हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है. सो नाउ यू कैन सी दैट देयर इज़ टू स्टोरीज, है ना. तो इन टू स्टोरीज वी कैन अंडरस्टूड क्या कि फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स इन सेटलमेंट्स, राइट. यहाँ पे तुमको दो पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है. वन इज़ दैट ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड सेकंड इज द स्कैटर्ड सेटलमेंट. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में देखो पूरा घर, सब लोग साथ साथ में एक के बाद एक, छोटा सा रोड, राइट, इस तरह से पूरा कंजस्शन वाला एरिया. एंड सेकंड इज स्कैटर्ड सेटलमेंट, जो है वो बिल्कुल ही एक घर है और पूरा मैदान है हर जगह पे ना, छोटा मोटा घर आजू बाजू में है, बस 4-5 घर ही है. तो टू डिफरेंट पिक्चर्स सेटलमेंट्स, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स. द विलेज आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, forestry, craft works and trading, etc. So this is the rural and urban, village and city, rural and urban. इन द विलेज जो होता है वहाँ पे लोग क्या किसके ऊपर होता है, फॉरेस्ट्रीज, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ऐसा छोटा मोटा काम में उन लोग बिजी होते हैं अपने काम में. ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली
बिल्ट एरिया ऑफ डेवलिंग। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो बहुत ही सब पूरा एक दूसरे से घर सब कुछ जुड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे गली जो होता है जैसा अपना सिटी है यहाँ पे। फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल इन स्कैटर सेटलमेंट्स, ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। स्कैटर में बहुत सारे जगह है वहाँ पे, राइट, एक घर है तो दूसरा घर बहुत दूर है। इन द दिस टाइप ऑफ द सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। ऐसा जगह, ऐसा घर हमको देखने को मिलता है जहाँ पे हिली एरिया होता है वहाँ पे। In rural areas, people build houses to suit their environmental. In region uh, of heavy rainfall, they have slanting roofs, place where water accumulates in the rainy season. The houses are constructed on a raised platform or shelter स्टिल्स, राइट। तो यहाँ पे रूरल एरिया में जहाँ पे गांव होता है तो वहाँ पे जो उनका घर जो होता है वो हेवी रेनफॉल यहाँ पे गिरते रहता है, इसलिए उन लोग क्या करते हैं अपना घर के छत जो होता है वो बिल्कुल ही स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं ताकि पानी गिरने से कहीं अंदर ना आ जाए और साइड में से वो गिर जाए। प्लेस वेयर वाटर एक्यूमुलेटेड इन द रेनी सीजन, द हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। यहाँ पे तुम लोग एक फ़ोटो देख सकते हो, यहाँ पे फिगर नंबर 7.4 में हाउस ऑफ द स्टिल्स, हाउ दे आर मेकिंग, राइट। यहाँ पे ऊंचाई पे घर बनाता है ताकि नीचे कभी कभी घर पे पानी आ जाता है, नीचे पानी आ जाता है तो नीचे का लेवल से उन लोग ऊंचा अपना घर बना देता है। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ अटैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन द एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट। थिक मड यहाँ पे मिट्टी का और बोल सकते हैं कि भाई गोबर जो होता है ना उनको दोनों को मिक्स कर कर उन लोग उसका रूफ बनाते ताकि हॉट सीजन में उनको घर के अंदर ठंडक मिले। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रो एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। इन लोग अपना घर जो होता है बिल्कुल कच्चा घर होता है, ये पत्थरों से या छोटे मड से, मिट्टी से, क्ले से, स्ट्रो मतलब बैम्बू का जो पाइप होता है, बैम्बू का जो लकड़ी होता है ना उसका, उससे दे आर मेकिंग द कंस्ट्रक्ट हाउस। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्ज। टाउन्स जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और सिटी जो होता है वो बहुत बड़ा है अर्बन सेटलमेंट में। इन अर्बन एरिया द पीपल आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। नेम सम ऑफ द विलेज टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। जैसे कि अपना मोरबी जो है, राइट, पूरा का पूरा पब्लिक जो है वो लोग हमेशा बिजी रहता है, वो लोग सब काम के लिए, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करने जाता है, कुछ लोग ऑफिस में काम करने जाता है, कुछ लोग स्कूल में काम करने जाता है, कुछ लोग बैंक में काम करने जाता है, राइट। लाइक दैट वे दे ऑल पीपल्स आर इन बिजी इन द अर्बन सेटलमेंट्स। ओके, तो ये जो सेटलमेंट्स के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ा था। नाउ ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इन द ओल्डन एज पीपल्स वे मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर लोड्स, यानी कि अपने कंधे के ऊपर ये लोग अपने सामान सब कुछ रखकर एक जगह से दूसरे जगह पे दे आर गोइंग मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आफ्टरवर्ड दे स्टार्टेड टू यूज़ द एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डोंकी, कैमल, हॉर्स, है ना, इन सब का यूटिलाइज उन लोग ने करना शुरू हो गया। जैसे उन लोग ने डिस्कवर किया व्हील को, बाई एक्सीडेंटली दे गोट द फायर व्हील, है ना, ये सब कुछ। तो दैट व्हील दे स्टार्टेड टू यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। दे स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल। दे स्टार्टेड टू लिव विथ दिस एनिमल्स एंड आफ्टरवर्ड्स दे आर मूविंग। सो ये धीरे धीरे फिर टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, इंजन सब बनते गया, फ्यूल सब सर्च करते गया, राइट। तो टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ते गया, लोगों का ज़रूरियात, नीड्स जो होता है वो बढ़ते गया, उनका नीड्स इतना फास्ट होने लगा कि लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज़ करना मजबूर हो गया। ट्रांसपोर्ट इज meant by the which people and goods move. In the early days it took a great deal of time to travels long distance. और पुराने ज़माने में क्या होता है कि इन द ओल्डन एज दैट पीपल वेर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे long distance they take more time. People had to walk and used animals to carry their goods. Inventions of the wheels made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. इन आवर कंट्री डोंकी, मुल्स, बुल्लोक एंड कैमल्स आर कॉमन। जब मैंने समझाया ऐसा कि पहले जो ज़माने लोग जो थे पीपल्स वेयर यूजली यूजिंग द डोंकीज, मुल्स, बुल्लोक एंड कैमल्स एंड कॉमल्स, राइट। तो टुडे ऑल्सो वी कैन सी दैट इन द हिली एरियाज वेयर द पिलग्रिमेज प्लेसेस आर देयर, राइट। जैसे कि कोई भी एक पहाड़ के ऊपर अगर कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पे सब सामानों को पहुँचाया जाता है। दे आर यूजिंग द टेकिंग द हेल्प ऑफ द डोंकीज।
In the Andes mountains of South America, llamas are used are as are yaks in Tibet. देखो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के लिए याक को इन लोग यूटिलाइज करते थे, राइट। तो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के लिए द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ ऑफ रीच इंडिया। The early traders from other country used to take several months to reach India. पहले at the olden age, at that time when the wheels were not discovered, at that time the people were traveling from one place to another, and the other countries peoples were coming to our India. They are taking months time to reach in India. They took either the sea route, they coming at the sea route or the land route, right. In the sea route they are using the ship and everything, and in the land they by walking. Aeroplanes have made travel faster now. It takes only 6 to 8 hours to travel from India to यूरोप। अब यूरोप के लिए, इंडिया से यूरोप तक जाने के लिए 6 से 8 घंटा तक हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो शायद सदियों निकल जाता था, राइट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। आज के ज़माने में जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा टाइम को और एनर्जी को भी बचाता है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग चल के इंडिया से यूरोप तक हम लोग जाएंगे, इंडिया तक जाएंगे तो शायद 3 साल 4 साल में वहाँ पे पहुँचेंगे, और हमारा शायद एनर्जी भी नहीं होगा वहाँ तक चल के जाने के लिए, है ना। तो लाइक दिस वे दिस ट्रांसपोर्ट अबाउट आई एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू आफ्टरवर्ड्स। So thank you. Read the chapters, page number 47, 48 and 49. Thank you.